Hello dear students. In the previous video, we discussed about the wave nature of electromagnetic radiation, electromagnetic spectrum, alright. And in today's video, we're going to study about the particle nature of electromagnetic radiation. Alright, you know very well that electromagnetic radiation possesses both wave-like as well as particle-like nature. Alright, so let us proceed to our first topic. Now we know that light is a wave, but there is particle nature also, which was get to know with the help of few experiments like diffraction and interference. Okay, these experiments can be explained only by the wave nature of electromagnetic radiations. Now let us see what is the diffraction. A wave bends around both edges of a small opening forming a semicircular wave है ना अगर आप सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो डिफ्रेक्शन क्या इट इज बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टिकल ओके लेट अस सी व्हाट इज एन इंटरफेरेंस Interference is the phenomenon that occurs when two waves meet while traveling along the same medium. Now let us understand more with the help of diagrams. Now in this diagram, you can see the obstacle. Okay. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि waves जा रही हैं जैसे ही obstacle से टकराई तो waves ने bend होना start किया. Bending हुई लेकिन ज़्यादा नहीं हुई. Okay. So in this diagram we can see there is little diffraction as compared to the second diagram. In the second diagram you can see that the opening in the obstacle is लेस है ना बहुत छोटी सी ओपनिंग है जैसे ही वेव्स टकराई उस ओपनिंग से तो बेंडिंग हो गई दोनों तरफ से बेंड हो गई वेव्स इज दैट क्लियर so there is a lot of diffraction shown in this diagram. Next is interference. So basically there are two types of interference, constructive interference and destructive interference. So in detail you will going to study in class 12th physics, okay? Now in constructive interference you can see there are two waves which are showing same phase. Same phase का मतलब क्या है कि दोनों का crest एक ही phase में है एक ही direction में है दोनों का trough भी एक साथ एक ही phase में है इज दैट क्लियर तो जब ये वेव्स ऐड हुई तो ऑब्वियसली इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया है ना आप देख सकते हो यहाँ पर एंड सेकेंडली इफ यू टॉक अबाउट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो आप देखो दोनों वेव्स का जो ट्रफ और क्रेस्ट है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना ऊपर वाली वेव का क्रेस्ट ऊपर है और नीचे वाला ट्रफ शो कर रहा है पहले है ना तो यहाँ पर डिफरेंट फेज हो गया ओके तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा क्रेस्ट और ट्रफ दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें एज अ रिजल्टेंट मिलेगी इज दैट क्लियर सो हियर वी कैन सी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है वेव्स इन फेज प्रोड्यूस अ ब्राइट रीजन ओके और डिस्ट्रक्टिव रीजन में क्या हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो वेव्स हैं वो दोनों different phase के या out of phase है so that is why they produce a dark region is that clear so this was about interference in detail you will going to study in class 12 okay now let us come to wave nature or classical physics earlier physicists also used to think that जो electromagnetic radiations है वो wave है they are not a particle so classical physics or wave nature failed to explain few experiments. Number one, कौन-कौन से experiments explain नहीं हुए? Black body radiation. Okay. Number two, photoelectric effect. Number three, variation of heat capacity of solids as a function of temperature. And number four, line spectrum of hydrogen. So classical physics was unable to explain these four experiments. So a new theory came into existence which was quantum theory और simply अगर हम बोले तो quantum mechanics बोलते हैं ठीक है which explained all the experiments. So this quantum theory या quantum mechanics was given by Max Planck in the year 1900 ठीक है so this theory is also known as Planck's quantum theory and this theory is very important. Now let us first of all understand
black body radiation. This is very important. Okay, so what is a black body? The ideal body which emits and absorbs all frequencies is called a black body, and the radiation emitted by such a body is called black body radiation. All right, so black body एक object है which emits electromagnetic radiations over a wide range of wavelengths when heated, है ना। जैसे समर में हम अगर ब्लैक कलर पहन लेते हैं और बाहर जाते हैं, we feel hot because black color absorbs all heat radiations. We are all familiar with the glow of a hot piece of metal, है ना। आपने कभी देखा होगा सर्दियों में कोयला जलाते हैं, आग सेकते हैं, अंगीठी जलाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कोयला क्या करता है, इट ग्लोज, है ना, स्मोल्डरिंग कोल, जैसे यहाँ पे मैंने शो किया है। वैसे ही आप एक समझो आयरन, जैसे हम घर में प्रेस करते हैं ना कपड़े, तो आप क्या करो, प्रेस को ऑन कर दो, आयरन को ऑन कर दो, लाइट ऑफ कर दो, और आपको मालूम है आपने प्रेस कहाँ रखी है। अगर आप उसके पास अपना हाथ लेके जाओगे थोड़ी दूर तक, आपको गर्मी उसकी फील होगी अपने पाम पर, अपने हाथ पर। ठीक है, ना व्हाट डज इट मीन कि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वहां से हीट आने लगी, लेकिन आयरन ग्लो थोड़ी ना कर रही है, वो जो प्रेस है उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, वो वैसी ही है। ठीक है, वो ग्लो नहीं कर रही है, इसका मतलब यहाँ से इंफ्रारेड रीजन तक तो वो हीट आ रही है। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन तक है उसकी वेवलेंथ, लेकिन जैसे जैसे हम ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हीटिंग इंक्रीज होती है, तो वो इंफ्रारेड रीजन से वो विजिबल रीजन में आ जाता है। इज दैट क्लियर? तभी वो हमें उसकी वेवलेंथ शो होती है। जैसे सबसे पहले रेड शो होता है, रेड इसलिए शो होता है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, उसकी एनर्जी सबसे कम है, तो इसीलिए सबसे पहले हमें रेड शो होगा। और फिर धीमे धीमे जब हम उसको और हीट करेंगे, जैसे जैसे वो ज्यादा हीट होगा, फिर येलो, ब्लू, पर्पल से होता है, फिर वो व्हाइट शो करने लगता है। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स जब ग्लो हो रहा है मेटल, तो इट गिव्स ऑफ विजिबल लाइट whose color varies with the temperature of the metal, है ना। और भी फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन एमिट करता है, टू विच आवर आइज डू नॉट रिस्पॉन्ड। ठीक है, विच आर प्रेजेंट एज वेल। सो मतलब क्या है कि कोई भी हॉट बॉडी है, ठीक है, तो वो एनर्जी तो एमिट कर रही है, हॉट बॉडी है इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, एनर्जी एमिट कर रही है, तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड रीजन से होते हुए विजिबल रीजन में जैसे ही आएगी, तो हमें उसकी वेवलेंथ शो होने लगेंगी। और आपको मालूम है कि सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो किसकी है, वॉयलेट की, है ना। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड की, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी सबसे कम है। तो इसीलिए जब भी हम किसी हॉट बॉडी को गर्म कर देते हैं, तो वो सबसे पहले कलर किसमें चेंज करती है, रेड में, क्योंकि रेड की जो फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और फिर धीमे धीमे ऑरेंज येलोइश होता है, वो ग्रीन तो नहीं दिखता है, फिर ब्लू वॉयलेट होता है, और फिर वो रेड में आ जाता है, सॉरी वाइट में आ जाता है, वाइट इसका मतलब वो ग्लो करता है। इज दैट क्लियर? So when this was not visible, so they were emitting in infrared region, ठीक है, infrared region में तो emit हो रहा था ना। So there are some radiations which we can see, which are in visible region, and some radiations which we cannot see, है ना। Like for example, electric heater. इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट जो होता है, उसमें सपोज आपने उसके ऊपर पानी बॉईल कर रहे हो या दूध बॉईल कर रहे हो, है ना, तो वो जो एलिमेंट होता है वो ऑरेंज हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब आप एक बात सोचो, क्या कोयला जब उस हीट करते हैं तो क्या वो लाइट देता है? सोचो, इट गिव्स हीट, है ना, नॉट लाइट दैट मच, है ना, उससे गर्मी ज्यादा मिलती है, लाइट इतनी नहीं मिलती है। सो हीटिंग एलिमेंट गिव्स मोर लाइट बिकॉज इट हैज मोर टेम्परेचर। सो इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, है ना, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, इनकैंडेसेंट बल्ब पहले चलते थे, अब आजकल तो एलईडीज यूज होती हैं घर में, तो ये है इनकैंडेसेंट बल्ब। ठीक है, इसमें फिलामेंट होता है, दे हैव वेरी हाई टेम्परेचर। सो व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, इट ग्लोज, है ना, वो वाइट हॉट हो जाता है, इट गिव्स लाइट। ठीक है, जैसे कोयला है, कोयला को अगर गर्म करो, कोल को गर्म करो, तो वो मोर, इट गिव्स मोर हीट बट लेस लाइट। ठीक है, अगर हीटर की बात करो तो वो हीट तो देता है, प्रॉपर हीट दे रहा है, अच्छे से दे रहा है, लेकिन लाइट थोड़ी सी ज्यादा देता है एज कम्पेयर टू कोल। और बल्ब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये लाइट ज्यादा देता है, लेकिन इसकी हीटिंग कम है ना। तो एट हाई टेम्परेचर
सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। Now, the ability of a body to radiate is closely related to its ability to absorb radiation. कोई बॉडी है वो एमिट उतनी ही रेडिएशन करेगी जितना वो एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। एंड दिस इज एक्सपेक्टेड सिंस अ बॉडी इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग, है ना। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है दैट बॉडी इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब जितनी एनर्जी की रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई उतनी ही एनर्जी की रेडिएशन एमिट हुई। अगर सेम एनर्जी की जो रेडिएशन है वो एमिट नहीं होगी, दैट मीन्स उस बॉडी के पास थोड़ी सी एनर्जी बच जाएगी, और एनर्जी बच जाएगी इसका मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहता है एंड जस्ट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम देम एट द सेम रेट एज इट एमिट्स एनर्जी, है ना। तो इसीलिए ब्लैक बॉडी को परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर बोला जाता है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज व्हाई द आइडियल बॉडी which emits and absorbs all frequencies is called a black body, and the radiation emitted by such a body is called a black body radiation. Okay, now see this graph. अब आप यहाँ पर देखो, सबसे कम वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो आ रही है 3000 केल्विन पर, ठीक है। यहाँ तो आप देखो 2 × 10⁻⁻14 फ्रीक्वेंसी पर इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है ना। तो ये जो वेवलेंथ है ये हर फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ एमिट कर रही है, ठीक है। सबसे कम की भी कर रही है, सबसे ज्यादा की भी कर रही है, उससे कम की भी कर रही है। इज दैट क्लियर? जैसे 3000 केल्विन पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 2 × 10⁻⁻14, है ना। फिर उससे कम अगर मैं बात करूँ 4 × 10⁻⁻14 पर, और 6 × 10⁻⁻14 पर बिल्कुल ही कम हो गई, है ना। और अगर टेम्परेचर बढ़ा के 4000 केल्विन कर दिया तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। इंटेंसिटी मतलब आप ऐसे समझो कि ब्राइटनेस बढ़ गई, 5000 पे और ब्राइटनेस हो गई, 6000 केल्विन पर और ज्यादा ब्राइटनेस हो गई। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, मतलब उसकी ब्राइटनेस भी बढ़ गई। सो एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड increases with decrease of wavelength, ठीक है। it reaches a maximum value at a given wavelength and then starts decreasing with further decrease of wavelength. Is that clear to you now? सो अभी मैंने यही बोला कि वेवलेंथ के डिक्रीज होने पर इंटेंसिटी बढ़ेगी। अब वेवलेंथ कब डिक्रीज होगी? जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। नाउ क्लासिकल व्यू वाज क्वाइट सक्सेसफुल एट लो फ्रीक्वेंसी but failed badly at high frequency as it approaches infinity. Then comes Planck's quantum theory. Okay, and this theory was given by Max Planck in the year 1900, as I said earlier also. So he said that light energy is not continuous, it is drop by drop, but that too very, very fast. So it looks like a wave. Is that clear? So the first point of Planck's quantum theory is energy is not emitted or absorbed continuously. It is emitted or absorbed in the form of packets, wave packets or quanta. ठीक है? This quanta is the plural of quantum. And what is quantum? It is the smallest quantity of energy, okay, which could emit or absorb energy in the form of electromagnetic radiations. And in case of light, the quantum of energy is often called photons. So what are photons? They are basically energy packets only. Okay, and smallest quantity of energy is known as quantum. I hope the first point is clear to you. Now let us move to the second point of the theory. Second point is the amount of energy associated with quantum of radiation is directly proportional to the frequency nu of radiation. That is, E is directly proportional to nu. Okay, and E is equals to h nu. What is h? H is the proportionality constant which is known as Planck's constant. Is that clear? और E क्या है यहाँ पर? E है energy of one quantum. Is that clear?
और h की जो वैल्यू है दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। इफ फ्रीक्वेंसी इज मोर तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, इज दैट क्लियर? और अगर एनर्जी फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी कम होगी, इज दैट क्लियर? दे बोथ आर डायरेक्टली proportional. So I hope this is clear to you. Now the third point is a body can emit or absorb energy only in terms of integral multiple of quantum or photon. ठीक है, जैसे E is equals to n h nu where n is equals to 1 2 3 2.5 3.5 ऐसा नहीं होगा, is that clear? Discrete quantities में ये present होती हैं. All right, so these points are present in the Planck's quantum theory. So according to Planck's quantum theory, E is equals to h nu. Therefore, E is equals to h c upon lambda, because nu is equals to c upon lambda. Is that clear? So thus, greater the wavelength of radiation, lower will be the energy and lower will be the frequency. This is inversely proportional. So I hope it is clear now. So in today's lecture, we studied about the particle nature of electromagnetic radiation, which was well explained by Planck's quantum theory. And before that, we studied about black body radiation. So please go through it, and thank you and all the best.